Good morning, Namaste, Jai Hind. Welcome back. So, guys, as we were discussing about the formation of different parts of state government, under which we discussed the first two parts, the legislature, the executive, means formation of the state legislature, and along with that, the different parts related with state executive. Now, as the next, we are going to discuss about a very important part of the state government, which is called as judiciary. Means here in this video, we are going to discuss about High Court, यानी High Court या उच्च न्यायालय. So guys, as we all know that in India we are having a single tier structure of judiciary, in which the highest court is the Supreme Court. After that, in every state there is a High Court, and then there is a provision of District Court. In this way, a single tier structure is present in the matter of judiciary. Okay, यानी एक triangular structure बनता है जिसमें first of all the Supreme Court, after that the High Court, and then the District Court, the subordinate courts. Okay, so next point, and Supreme Court, about Supreme Court we have already discussed. So now the next one is the High Court, यानी आज का जो discussion है that is dedicated to the High Court. Okay, उच्च न्यायालय. अब जब High Court के बारे में बात करते हैं, then according to Article 214 of the Indian Constitution, 214 of the Indian Constitution, there will be a High Court in every state. Okay, there will be a High Court in every state. और इस हाई कोर्ट में के प्रोविजन में ये भी ऐड किया गया है कि देयर शैल बी अ हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट, अलोंग विद दैट देयर कैन बी one high court for two or more than two states. Okay, and under Article 214 we find the provision of High Court, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा. देयर शैल बी हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट. साथ में ये भी कहा गया है कि देयर कैन बी वन हाई कोर्ट फॉर टू और मोर देन टू स्टेट्स, यानी एक से ज़्यादा स्टेट्स के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है. ओके, सो इन दिस वे इफ वी टॉक अबाउट द प्रेजेंट सिचुएशन ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया, देन देयर आर 25 हाई कोर्ट्स एट प्रेजेंट इन द कंट्री. यानी इंडिया में टोटल 25 हाई कोर्ट्स डिफरेंट स्टेट्स में प्रेजेंट हैं, और जो लास्ट 25th हाई कोर्ट जो बना था दैट वाज रिलेटेड विद द आंध्रा रीजन, यानी आंध्र प्रदेश में ये बना था. इज दैट क्लियर? सो आंध्र प्रदेश वाज डिवाइडेड इन तेलंगाना एंड आंध्रा टू स्टेट्स. सो आफ्टर दैट अ न्यू हाई कोर्ट वाज फॉर्म्ड इन जनवरी 2019, और ये जो हाई कोर्ट है वो आंध्रा रीजन में यानी आंध्र प्रदेश में बनाया गया था. ओके, सो इन दिस वे देयर आर 25 हाई कोर्ट्स एट प्रेजेंट इन द कंट्री. तो हाई कोर्ट का प्रोविजन आर्टिकल 214 में मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि हर एक स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा, और एक से ज़्यादा स्टेट के लिए भी सिंगल हाई कोर्ट हो सकता है. इज दैट क्लियर? ओके, उसके बाद में बात इफ यू टॉक अबाउट द हिस्ट्री ऑफ हाई कोर्ट्स इन द कंट्री इन इंडिया, देन द फर्स्ट 3 high courts in the country was established in 1862 at Kolkata, Bombay, and then in Madras. यानी इंडिया में सबसे पहले हाई कोर्ट की शुरुआत जो है दैट वाज स्टार्टेड फ्रॉम कोलकाता, बॉम्बे एंड मैड्रास बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट. 3 major regions. Okay, Kolkata, Bombay and Madras. After that, in 1866, High Court was established in Allahabad. So in this way, these were the 4 major high courts of the country situated in the regions of Kolkata, Bombay, Madras and
इलाहाबाद. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 1862 3 मेजर रीजन्स, कोलकाता, बॉम्बे एंड मैड्रास. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि कोलकाता, बॉम्बे और मैड्रास ये 3 मेजर सेंटर्स थे ब्रिटिशर्स. यानी बिगिनिंग में सबसे पहले जो सेंटर ब्रिटिशर्स ने बनाए थे वो बॉम्बे, मैड्रास और कोलकाता से बिलोंग करते थे. ओके, और 1866 में हाई कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इलाहाबाद. इज दैट क्लियर? आपको पता ही होगा 1865 में इलाहाबाद ट्रीटी हुई थी विद द नवाब ऑफ अवध. ओके, सुजाउद्दौला. नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट which is related with the different articles of formation of High Court. So guys, if we talk about High Court, then in the Indian Constitution from Article 214 till Article 213 we find continuous description of High Court. Okay, यानी जब भी हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 तक कंटिन्यूस डिस्क्रिप्शन मिलता है हाई कोर्ट का, अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट एंड अबाउट द जुरिडिक्शंस ऑफ हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का गठन. इज दैट क्लियर? तो चलिए पढ़ते हैं उच्च न्यायालय के गठन के बारे में. द फर्स्ट पॉइंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट, मीन्स अबाउट द number of judges in high court. Okay, constitution of high court. तो guys, constitution of high court का जो provision है that is mentioned in article 216 of the Indian Constitution. अब इस आर्टिकल में क्या लिखा गया है? So guys, in article 216 it is clearly mentioned that there will be one chief justice. There will be one chief justice in high court along with that some other judges, some other judges will also there as per the नीड अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट. यानी हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट एज पर द रिक्वायरमेंट. ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट यानी नंबर ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट आपको क्लियरली अपने माइंड में इसको लर्न करना है, इसको फिट करना है. वो ये है कि हाई कोर्ट में नंबर ऑफ जजेस फिक्स नहीं है. फिक्स ये है कि देयर विल बी वन चीफ जस्टिस, एक चीफ जस्टिस होगा और इसके अलावा अदर जजेस होंगे जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग अपॉइंट किए जाएंगे बाय द प्रेसिडेंट. इज दैट क्लियर? सो द फर्स्ट पॉइंट in the formation of high court is related with the constitution of high court with the number of judges in high court. Is that clear? तो number of judges में one chief justice and some other judges appointed by the president. यानी number of judges जो हैं वो decide किए जाएंगे president के द्वारा. Okay. Now after that the next point. नंबर ऑफ जजेस डिसाइड करने के बाद हमें ये फाइंड आउट करना है दैट हु अपॉइंट्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट. ओके, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ High Court. Okay, so guys, under Article 217 Section 1 it is clearly mentioned that the judges of High Court will be appointed by the President. यानी ये clearly mention किया गया है कि judges of High Court का appointment जो है वो President के द्वारा किया जाएगा. Okay, the judges of High Court will be appointed by the President. Okay, so at the time of appointment of Chief Justice of High Court, the President will take the advice of the Chief Justice of India, means the Chief Justice of Supreme Court, the Collegium, and along with that the
गवर्नर ऑफ द स्टेट, यानी उस स्टेट के गवर्नर से जिस स्टेट में हाई कोर्ट, जिस स्टेट के हाई कोर्ट में इनको अपॉइंट किया जाना है जजेस को, उस स्टेट के गवर्नर से एडवाइस लेंगे। इसके अलावा कॉलेजियम ऑफ जजेस जो है उनसे एडवाइस लेंगे और चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लिया जाएगा। इज दैट क्लियर? सो एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट there are 2 points. The first one is the appointment of chief justice. तो चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, कॉलेजियम और गवर्नर की एडवाइस के अकॉर्डिंग किया जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, एंड दैट इज रिलेटेड विद अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस। ओके, so the other judges are appointed by the president after taking advice from the chief justice of supreme court, from the governor of that state. Along with that, at this time the advice of the chief justice of high court is also taken by the governor, by the president. Okay, यानी आपको ये माइंड में रखना है कि चीफ जस्टिस के अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, कॉलेजियम और गवर्नर की एडवाइस ली जाती है। ऑन द अदर हैंड, at the time of appointment of other judges, the president will take the advice of the governor of the states, chief justice of India. इसके साथ साथ कोलिजियम की जगह अब एडवाइस ली जाएगी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, यानी जिस चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट हो चुका है उनकी एडवाइस भी उनकी कोर्ट में अदर जजेस को अपॉइंट करने के लिए ली जाएगी। इज दैट क्लियर? ओके, और ये डिस्क्रिप्शन हमें मिलता है आर्टिकल 217 के सेक्शन 1 में। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, या क्वालिफिकेशन नीड टू बी द जज ऑफ हाई कोर्ट। ओके, तो गाइस क्वालिफिकेशंस में अपने को सिंपल सा पॉइंट ही माइंड में रखना है कि फर्स्ट पॉइंट ये रहेगा दैट ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, और दूसरी बात कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है, मींस द डिस्क्रिप्शन रिलेटेड विद द क्वालिफिकेशंस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट वी फाइंड इन आर्टिकल 217 सेक्शन 2। ओके, यानी सेकंड सेक्शन में मिलता है आर्टिकल 217 के। ओके, और इसके अकॉर्डिंग सबसे पहला पॉइंट जो बाकी सारे पोस्ट में आपको देखने को मिलेगा, एंड दैट इज ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। ही शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज he should have served as a judicial officer in any high court for a minimum period of 10 years, यानी उसने किसी भी कोर्ट में, उस स्टेट के किसी भी कोर्ट में एज एन जुडिशियल ऑफिसर कम से कम 10 years तक सर्विस की हो। ओके, सो he should have served in any court। हम ये कह सकते हैं कि भारत के किसी भी कोर्ट में उसने कम से कम 10 years तक एज जुडिशियल ऑफिसर सर्विस की हो। ओके, और इसके अलावा इसमें यह भी हो सकता है कि ही शुड हैव सर्व्ड एज एन एडवोकेट। पहले जुडिशियल ऑफिसर था, यदि वो नहीं है तो वो एडवोकेट भी हो सकता है। ओके, तो उसने एज एन एडवोकेट कम से कम 10 years तक सर्व किया हो इन वन हाई कोर्ट, 2 or more than 2 high courts. Okay, then in such a situation he can be appointed as the judge of high court. तो पॉइंट था क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर्टिकल 217 के सेक्शन 2 में मेंशन है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्लियरली कहा गया है कि वो भारतीय सिटीजन होना चाहिए, ही शुड बी एन इंडियन सिटीजन। ओके, उसके अलावा उसमें ये भी कहा गया है कि या तो उसने एज ए जुडिशियल ऑफिसर 10 years तक सर्व किया हो, या फिर उसने प्रैक्टिस की हो एज एन एडवोकेट 1, 2 or more than 2 हाई कोर्ट फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 10 years, यानी दोनों में ही जो पीरियड रखा गया दैट इज रिलेटेड विद 10 years। ओके, यानी कम से कम 10 years का पीरियड वहाँ पे होना चाहिए।
इज दैट क्लियर? ओके। अब इसके बाद हाई कोर्ट के जजेस जो होते हैं वो कितने इयर्स तक सर्विस कर सकते हैं, यानी उनका टेन्योर क्या होता है? सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द टेन्योर ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सॉरी हाई कोर्ट। ओके, टेन्योर ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, आर्टिकल 217 सेक्शन 1। इसमें ये क्लियरली मेंशन किया गया है दैट there will be 3 major conditions related with the tenure of the judges of high court, जिसमें फर्स्ट पॉइंट है that the judges of high court will serve till the age of 62 years. okay, यानी आपको ये पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट में जजेस के अपॉइंटमेंट के लिए कोई मिनिमम एज नहीं है, जैसे लोकसभा में 25 ईयर और राज्यसभा में 30 ईयर, प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर्स, एंड देयर इज नो सच काइंड ऑफ एज फॉर द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। ओके, लेकिन इनके टेन्योर के लिए एक एज फिक्स है। ओके, एंड दैट इज टिल 62 ईयर्स, यानी कोई भी हाई कोर्ट का जज जो है वो 62 ईयर्स तक एज कंप्लीट करने तक रह सकता है। इज दैट क्लियर? इसके अलावा यानी इससे पहले भी ही कैन हिमसेल्फ सबमिट हिज हैंड रिटन resignation, he can submit his handwritten resignation to the president, यानी इससे पहले भी वो अपनी पोस्ट से रिजाइन कर सकते हैं, जिसके लिए वो हैंड रिटन रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट के पास में भेज सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन, एंड द नेक्स्ट वन इज रिलेटेड विथ impeachment, मीन्स द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट judges of high court can be removed from their post before completion of their tenure through the impeachment motion, and I think it is very clear in your mind how this impeachment motion get passed in the पार्लियामेंट। यानी सिंपल सा पॉइंट है कि इम्पीचमेंट मोशन या 2/3 मेजोरिटी से पास किया गया मोशन फॉर द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, किसी भी हाई कोर्ट के जज को उनके टेन्योर कंप्लीट होने से पहले हटाया जा सकता है। ओके, सो दीज आर द मेजर एलिमेंट्स रिलेटेड विद द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद oath. Okay, oath by the judges of High Court. Oath and affirmation by the judges of High Court. Article 219 ये clearly mention करता है that the judges of High Court will take an oath in front of the governor. ओके, हाई कोर्ट के जजेस जो होंगे, जो हाई कोर्ट में एज ए जज जो अपॉइंट किया जाएगा, वो 3rd स्केड्यूल में मेंशन प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ओथ लेगा इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर और पर्सन अपॉइंटेड बाय द गवर्नर फॉर दिस कॉज, और इसका डिस्क्रिप्शन मिलता है आर्टिकल 219 में। यानी सिंपल सा पॉइंट है कि जो भी हाई कोर्ट के जज के रूप में अपॉइंट किया जाता है वो हाई कोर्ट के जज पर की पोस्ट पर अपॉइंट होने से पहले उसके लिए शपथ लेगा इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर, और इसमें जो स्ट्रक्चर होगा वो वही होगा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd स्केड्यूल में मेंशन्ड है। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेटेड विद द सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, जिसका डिस्क्रिप्शन आर्टिकल 221 में मिलता है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 221 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट विल रिसीव फिक्स सैलरी एंड अलाउंसेस डिसाइडेड बाय द पार्लियामेंट, यानी उनके लिए कुछ फिक्स सैलरी एंड अलाउंसेस होंगे अलॉन्ग विद फ्री रेजिडेंस, फ्री व्हीकल सर्विस, और ये सैलरी अलाउंसेस हैं उनको डिसाइड करने का राइट पार्लियामेंट के पास में होगा। इज दैट क्लियर? तो दे विल रिसीव फिक्स सैलरी एंड अलाउंसेस एज पर डिसाइडेड बाय द
पार्लियामेंट अलॉन्ग विथ फ्री रेजिडेंस एंड फ्री व्हीकल सर्विस, और ये डिस्क्रिप्शन मिलता है आर्टिकल 221 में। इज दैट क्लियर? ओके। आफ्टर दैट the next point is related with the transfer of judges. Okay, transfer of judges. तो हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफ़र भी होता है। ओके, मीन्स द जजेस ऑफ हाई कोर्ट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर कोर्ट। मीन्स राजस्थान के हाई कोर्ट से चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जा सकते हैं, वैसे ही आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट से तेलंगाना में या महाराष्ट्र के हाई कोर्ट में यानी बॉम्बे हाई कोर्ट में उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ओके, और ये डिस्क्रिप्शन यानी ये स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ जजेस जो है वो आर्टिकल 222 में मिलता है, जिसके अकॉर्डिंग ये क्लियरली मेंशन किया गया है दैट द जजेस ऑफ हाई कोर्ट can be transferred from one court या one high court to another high court by the president on the advice of chief justice of supreme court। यानी हाई कोर्ट के जजेस को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, और इसमें हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको ट्रांसफ़र करने के लिए प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइस ली जाएगी फ्रॉम दी president. Is that clear? Sorry, from the chief justice of supreme court. So in this way these are the major things related with the formation of high court। यानी हाई कोर्ट कैसे बनता है, नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट, देयर क्वालिफिकेशन, देयर टेन्योर, along with that salary and allowances for the judges of high court and the transfer of judges of high court। Okay, so guys, in this way the description, the explanation related with formation of high court meet to an end, and about the remaining things means about the jurisdiction of high court along with the different provisions related with independence of high court mentioned in the Indian Constitution we will discuss in the next one। So guys, stay tuned for the next. Till then, stay at your home, be safe. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat.